What happened with her when the chief minister was going to visit, when you visit that district, that our comrade was being under arrest. So it was quite unthinkable that a comrade, as a SFI comrade, he was being under arrest only because he's a she is a she's a perfect example of a voice of dissent. So these are the attacks are going on everywhere, and we are discussing here. We are discussing here how to challenge in this situation, how to face this situation and give an alternative. From this conference, we will give an alternative education policy, and I think this SFI will be the first student organization who are producing this alternative education policy, because we know that there are so many that we have now. It is very revealed in front of us that what is the negative sides of the what is the danger of the national education policy. But right now, tomorrow I will give it to you also the alternative of the education policy, and that alternative policy also we are have already passed some resolutions like that midday meal for all, because we believe this midday meal is very important for the all students, especially some student for the nutrition of the student, for the children and his that family of the children also. Now this through this national education policy, central government is trying to destroy this midday meal scheme. At the same time, we have passed a resolution in solidarity with Cuba, because as a student, SFI is a student organization. We believe that wherever the people are suffering, we extended this support, and especially when the Cuba is fighting against the imperialist power for over 6 decades, we extend solidarity with them. And at the also same time, we have passed a resolution against the dismantle of the UGC system. They are trying to destroy the UGC, and they are trying to implement oneness among us. In the name of Hindi, Hindu, Hindustan, and another, they are trying to destroy our education system. They are trying to destroy the federalism. They are trying to destroy the plurality of our country and the cultural diversity of our country. And on the other hand, they are trying to impose the policy for the rich. Only rich students, the kids, will get favor from this situation, because this national education policy means the fee hike. This national education means the cartel of democracy. This national education policy means is as a scrapping all the schemes, all the social welfare schemes. Already you can understand that we have told earlier also that the central government has already destroyed a few days back this MANF scholarship, Maulana Azad scholarship, which was for the minority students. They are not. They are just closed the Adivashi hostels in several parts of our country. Here in Telangana also, we are the government. We tell that don't impose this national education policy like BJP government. If you are implementing the same policy, then there will be no difference between you two. So we are giving an alternative, and with this, I believe already you can see in Andhra Pradesh what is happening right now. Their Hindiization is another example. In the central, only the universities, colleges, they are implementing this CBSE, ICSE board. They just destroyed the state boards. They have closed down so many schools there, and the students who are coming from the marginalized family, they will suffer. They are suffering most. Here we have discussed what is the real issue, real face of the BJP government's model. They are talking about the double engine government, but what happening in Tripura, what happening in Gujarat, ultimately the students are suffering there. So here we are taking the challenge to fight back against this national education policy, because we believe this is not a national education policy, this is national exclusion policy, which means it will exclude the student community who are coming from the Dalit family, who are coming from the Adivasi family, who are coming from the minority families. So with this, we are here in this press conference, and of course, we are also taking some programs in future for some militant action, some everywhere in our country. And that is why our comrades are there. You can ask questions to them also. They can share their experiences,
what happened in Kashmir, what is happening in Kashmir, what is happening in Gujarat. They are in front of you. They are just right here from their mouth also. ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఎస్ఎఫ్ఐ 17వ రాష్ట్ర అఖిల భారత మహాసభలు జరుగుతున్న ప్రతిదాన్ని మీరు ప్రజలకు చేరవేస్తున్నందుకు ఆల్ ఇండియా కమిటీ నుంచి మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు హైదరాబాద్లో ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు అది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్. కాబట్టి చాలా ఉత్సాహంగా ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ప్రెస్ మీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళని చూస్తే అటు పక్క కాశ్మీర్ నుంచి కామ్రేడ్ వచ్చున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి కూడా కామ్రేడ్ వచ్చి ఉన్నారు. కాశ్మీర్లో ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు. ఆర్టికల్ 370 తీసేసిన తర్వాత కాశ్మీర్లో ఒక డిక్టేటర్షిప్ అనేది నడుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి హక్కులు కనీసం మినిమం హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా లేకుండా చేయడానికి అక్కడ గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ రిస్టోరేషన్ లేదు. ఇంటర్నెట్ కంప్లీట్గా కట్ చేశారు. రీసెంట్లీ ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఇంటర్నెట్ అని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు గుజరాత్లో ఏమవుతున్నది. గుజరాత్లో నరేంద్ర మోడీ చాలా సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన తర్వాత, అదేవిధంగా గుజరాత్లో కంటిన్యూస్గా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్న తర్వాత గుజరాత్లో రైట్ నౌ ప్రోగ్రెసివ్ సెక్షన్స్ కానీ లెఫ్ట్ సెక్షన్స్ కానీ ఎట్లా ఏ విధంగా హెరాస్మెంట్కి గురవుతున్నారు గుజరాత్లో. గుజరాత్ కామ్రేడ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు గుజరాత్ కామ్రేడ్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగి అక్కడ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో, విద్యార్థుల మూమెంట్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈరోజు అఖిల భారత మహాసభలో 3వ రోజుకి చేరుకున్నాము. మేము ఇక్కడ తీసుకున్న రెజల్యూషన్స్ రానున్న 2-3 సంవత్సరాల్లో దేశం మొత్తము ఈ విద్యా వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఎలాగైతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏమైతే చేస్తుందో వాటికి ఎగెనెస్ట్గా పోరాడాలని చెప్పేసి రిజల్యూషన్ చేయడం జరిగింది. వాటిలో ముఖ్యంగా మిడ్ డే మీల్స్ని రిజిస్టర్ చేయాలనే రెజల్యూషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు మిడ్ డే మీల్స్ ఒక చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రోత్లో ఎంత ఇదవుతుంది అనేది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి యాక్చువల్గా ఏమంటారు దాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది లేకుండా చేయడానికి మిడ్ డే మీల్స్, ఎందుకంటే పౌష్టికాహార లోపం మన భారతదేశంలో చాలా ఉంది. ఆ మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు ఆకలితో ఉండకూడదు పిల్లలు అన్న ఉద్దేశంతో మిడ్ డే మీల్స్ చేయడం జరిగింది. మిడ్ డే మీల్స్ని కూడా ఈరోజు దాంట్లో బీజేపీ ఏ రకంగా చాలా బీజేపీ స్టేట్స్లో ఏమవుతుందంటే మిడ్ డే మీల్స్లో ఎగ్ని కట్ చేశారు. ఎగ్ ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ పెట్టకూడదని చెప్పేసి. సో అటువంటి జరుగుతున్న ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్లో ఆల్ ఇండియా మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరు యాక్చువల్గా మా ఇక్కడున్న కామ్రేడ్స్ని ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడిగేసి మీరు ఎక్కువ సమాచారాన్ని తీసుకోవచ్చు. मेरा नाम सतीश शाह है और 1 मिनट मेरा नाम सतीश शाह है और मैं गुजरात स्टेट से आती हूँ। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन जीता था वो गुजरात मॉडल के नाम पे जीता था। गुजरात मॉडल वो उन लोगों ने ये बताया, बीजेपी ने ये बताया कि ये विकास मॉडल है, पर देखने जाए तो वो विकास मॉडल नहीं है, वो मोदानी मॉडल है जो खाली अंबानी और अदानी के लिए काम करता है। गुजरात में अगर देखने जाए तो वहाँ का एजुकेशन का जो हालत है कि लगातार स्टूडेंट ड्रॉप आउट मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो सरकार है उन्होंने 6000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया है। वो लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और प्राइवेट जो स्कूल है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो लोग बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एडमिशन भी नहीं करते हैं। तो ये है गुजरात का परिस्थिति। ना प्रॉपर हॉस्टल है, ना स्कूल
स्कूल में टीचर्स है ना प्रोफेसर है, तो ये जो असुविधा है उसकी वजह से। और रूरल एरिया में अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है। कोविड में जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो गुजरात में 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास खुद का स्मार्टफोन नहीं है, तो हम वहाँ से सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किया होगा। मेरा ही बात करूँ तो जब मैं गांव में गई थी और वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन चालू था मेरी कॉलेज से, तो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। अगर फ़ोन है तो भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, और नेटवर्क आ रहा है तो हर महीने हम कैसे रिचार्ज कराएं, क्योंकि तब सब काम बंद था, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो गुजरात में और पेपर लीक सबसे बड़ा इश्यू है कि बच्चे स्टूडेंट जो है दिन रात मेहनत करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जीपीएससी के लिए, लेकिन ये जो पेपर लीक का इश्यू है बहुत बड़ा इश्यू है। 4 साल में लगातार 13 पेपर जीपीएससी पब्लिक सर्विसेज एग्जाम के 13 पेपर लीक हुए हैं। उसकी वजह से गुजरात में जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं और महिलाओं का परिस्थिति बहुत ख़राब है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बिल्किस बानो 2002 में जो गोधरा राइट्स हुआ था, उनके जो विक्टिम है बिल्किस बानो, उन्होंने गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को रिहा कर दिया है। और बीजेपी के जो एमएलए है अभी गोधरा के, उन्होंने ये बयान दिया है उनको रिहा करने के ऊपर कि वो अपर कास्ट से आते हैं और वो संस्कारी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो लोग हैं, जो आरएसएस गुंस है, वो बता रहे हैं कि बलात्कारी है, हत्यारे हैं, वो संस्कारी है। तो इसके साथ हमको लगातार लड़ाई करना पड़ रहा है और एसएफआई को टारगेट भी किया जा रहा है कि लगातार हमारे ऊपर अटैक होते जा रहे हैं। जैसे कॉमरेड ने बताया कि एक 23 साल की लड़की को जब चीफ मिनिस्टर उनके गांव में विजिट के लिए आ रहे थे तो उनको सुबह 6 बजे से घर से ही उठा लिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। उसी के साथ जब उसके बाद हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो एबीवीपी ने माफ़ीनामा भी लिखा था कि हमने गलती से एसएफआई के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ का लोकल आईबी है वो भी हमको टारगेट करता रहता है कि हम कहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं, और जब भी हम किसी छोटा सा भी कार्यक्रम करते तो वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं एबीवीपी आरएसएस गुंस और हमको मतलब अटैक करते हैं। और ऑल इंडिया जत्था के लिए, एसएफआई का ऑल इंडिया जत्था के लिए जब हम फंड कलेक्ट कर रहे थे तब हमारे 2 कॉमरेड्स को एबीवीपी आरएसएस द्वारा किडनैप भी कर लिया गया था। और वहाँ का जो सरकार है 144 रिन्यू करता रहता है, उसकी वजह से हमको कोई भी कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिलता है। इवन हमने जो ऑल इंडिया जत्था का कार्यक्रम किया था, जो मास गैदरिंग किया था, उसमें भी हमको परमिशन नहीं था, विदाउट परमिशन हमने वो कार्यक्रम किया था। तो ये जो सरकार है, अगर गुजरात में कुछ प्रोटेस्ट होगा तो उसका असर पूरे देश पे होगा। इसके लिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन गुजरात में हो। इसके लिए हमको लगातार दबाता रहता है। लेकिन एसएफआई के जो भी कॉमरेड्स हैं, हम जो सब साथ में थोड़े हैं लेकिन आगे काम कर रहे हैं। और वहाँ का जो मेन हमारा जो स्लोगन है स्टडी एंड स्ट्रगल, और जो अभ्यास और संघर्ष, और दूसरा भी है कि शिक्षण बचाओ, कि हमको शिक्षण को भी बचाना है। ये जो सरकार लगातार शिक्षण को ख़त्म कर रहा है, एनईपी के नाम पे रोजगार ख़त्म कर रहा है, अग्निपथ के नाम पे, तो उसके साथ हमको आगे लड़ाई आगे करना है। అవసరం లేదు. I'm Akif. I'm from Jammu and Kashmir. So I do not say much more about the Kashmir. As you know, our mind is occupied by wars, bloodshed, grief, and horror all around. Regarding the student politics, the student unions are officially banned in Kashmir. So environment in colleges, universities, and schools in Kashmir is not conducive. They have become the structures of oppression. Due to the immunity in Kashmir is given by security forces, they can enter in any political, any education institution and create havoc. The students, the essence of true knowledge in Kashmir remained behind dark walls. After the abrogation of Article 370, internet has been cut down, cell phones were unoperational, and the entire Kashmir has been turned into a prison while security personnel are deployed in every corner of the state.
Keeping in view the student, the importance of significance of student community, we formed a JKSF in Jammu Kashmir Student Federation there. So we have been working for so many years semi-overtly because of the ban of the student unions. Now we are working openly there, and we are that recently the All India Jatha, which has been started, from Jammu Kashmir. So we are working. We are working. We are working with every corner of the state to mobilize the students, so that students' activism can bridge the gap between the students of Kashmir and the mainland of India as well. Thank you. Any questions? मयूर जी, आप बोल रहे हैं ये गुजरात और कश्मीर में स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं बोल के, पूरा देश में तेलंगाना और एपी में भी वो सीएम का प्रोग्राम रहता है ना, वो प्रोग्राम के बारे में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा अपोजिशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फोन भी हो तो उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये एक ही राष्ट्र का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देश में ऐसा ही हो रहा। बीजेपी आने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कैसा चल रहा, ऐसा भी वो पूरा लोगों को पूरा देश में हर राष्ट्र में ऐसा चल रहा है। इसलिए क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोगों का एक स्लोगन है, जो स्लोगन हम लोग बोलते रहते हैं, जो हिटलर का चाल चलेगा वो हिटलर का मौत मरेगा। कोई भी तानाशाही जो होता है, जो तानाशाही का हर एक रंग होता है, और ये तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, जो हम लोग ये भी देखा पूरा देश में भी तो एसएफआई लड़ रहा है। जैसा बंगाल का कुछ कॉमरेड आया, वहाँ पर कुछ फेक ऑपोजिशन होने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ऑपोजिशन ऐसा होता है जैसा वहाँ पर ममता बनर्जी जो एनईपी लागू कर रहा है, वो एनईपी लागू कर रही है, और वहाँ पर माने स्टूडेंट में जेल जाना तो अक्षर हो गया है। जेल जाना छोड़ दीजिए, यहाँ पर आज आएगा अनीस खान का भाई आएगा यहाँ पर सभा में। अनीस खान को एक स्टूडेंट था, प्रोटेस्ट करता था, सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मूवमेंट में आगे थे वो। उसको घर में घुसकर पुलिस तीसरी मंजिल से गिरा के उसको खून किया था। उसको लेकर पूरा बंगाल जला था। स्टूडेंट मूवमेंट ऐसा खड़ा हुआ था। अब देखिए, हम लोग ये भी देख रहे थे जब हम लोग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद में आए थे, ये कौन सा देश का कानून है पता नहीं, हम लोगों का देश का तो नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बात करने का अधिकार है, और अगर कुछ लोग ये हाई कोर्ट का जो विचार ये सब दिखा रहे, तो देखिए देश के सबसे ऊपर है देश का संविधान, हाई कोर्ट से ऊपर है, सबका ऊपर है संविधान। वो तैयार होता है देश के लोगों के लिए। हम लोग जब कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे यहाँ पर, हम लोग देख रहे थे वॉल राइटिंग करने नहीं दे रहे थे। हम लोगों का प्रचार हो रहा है एक जगह, दूसरी प्रांत में हो रहा था, और ये जो एक त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर आया है, उसका शहर का मूल जो केंद्र होता है वहाँ पर नहीं, उसको मीटिंग करना पड़ा एक जगह जहाँ पर लोग नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन बैन है, क्यों है? अगर स्टूडेंट्स को इतना डरते क्यों है ये लोग, हम लोग पूछना चाहते हैं। जो जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन रद्द किया है, मैं उनसे भी हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोग अभी तक इतना दिन हो गया है, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग जहाँ पर उपस्थित थे, इस यहाँ ये तेलंगाना जब मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट का हर्ट था ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी देश को प्राइम मिनिस्टर भी दिया है, लेकिन वहां पर क्यों इलेक्शन नहीं होगा? वही एक ही बात। एनईपी ने जो कहा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो बात है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हु आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सिस्टम, हम लोग जो स्टूडेंट है वो सबसे बड़े हैं एजुकेशन सिस्टम में, सबसे ज्यादा भागीदारी हम लोगों का ऊपर है। लेकिन हम लोगों का सिलेबस कटौती चेंज हो रहा है, हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है,
हम लोग का हॉस्टल का हालत खराब है, पानी का नल खराब है, हमारा हॉस्टल का कैंटीन है, बोलिए यूनिवर्सिटी का कैंटीन का हालत खराब है। हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। दिल्ली से निदान आएगा या आपका चीफ मिनिस्टर मुख्यालय से रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद सब ठीक होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये उल्टा ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये है एक नॉमिनेटेड एक बॉडी तैयार हो रहा है। तो हम लोग जो बोलते हैं ये तो एक ही सिक्के का दो पहलू है, बोथ साइड ऑफ टू कॉइन हो जाएगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का जो मेन सबसे भयंकर जो तरीका है। बाकी बहुत सारे स्टेट हम लोग अपोजिशन देख रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से तो चल ही रहा है, हम लोग उसके खिलाफ है। लेकिन बीजेपी का और एक भयंकर जो चीज है, वहां पर जात पात को देख के टारगेट कर रहा है। और आरएसएस का स्कूल में भी ये चल रहा है। ये देखिए आरएसएस का स्कूल में क्या हुआ था, ये राजस्थान में एक 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, गर्मी में, राजस्थान का गर्मी में उसको प्यास लगा था, तो उसका जो टीचर था सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, उसका मटकी से पानी पी लिया वो बच्चा, और उसको उस टीचर इतना मारा, बच्चा वहां पर ही मर गया। ये कहाँ चल रहा है हमारा देश? हम लोग यहाँ पर आज बाबा साहेब आम्बेडकर को स्मरण करते हैं, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सोच कुचल दिया जा रहा है। और यही है आरएसएस का और भी भयंकर तरीका है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा पार्टी से, दूसरा सब कुछ से अलग है। इसलिए उसको जिस जहर जो घुसा रहा है दिलों में, दिमाग में, ये देश के लिए खतरनाक है। ये कश्मीर को क्यों किया? कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर वैली में मुसलमान है, इसलिए जहां पर आप सुन सकते थे, ये गुजरात में जो दलित और एसटी जो पूरा के पूरा और आदिवासी जो स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से बर्ताव किया, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ये प्रांतिक वर्ग का बेटा बेटी पढ़े। तो यही अंतर, ये तो अंतर है ही। तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये आंकड़ा, ये सिचुएशन। लेकिन हम लोग जो बोलना चाहते हैं, इन अनडेमोक्रेटिक तरीके के जिस तरीके से चल रहा है पूरा, बहुत सारे स्टेट में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करने का जो साजिश रच रहा है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब हम बात कर नहीं पाएंगे, तब हम बिरला अंबानी कमीशन जैसा तैयार किया था पहले, जो एनडीए सरकार था वाजपेयी के टाइम, वही पॉलिसी आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोग, इसलिए हम लोग ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है कैंपस में, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचल दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर भी उठाएंगे बात, और अगले आने वाले दिन में हर कैंपस में प्रोटेस्ट करेंगे। वो अगर आंध्रा में हो, वो अगर तेलंगाना में हो, वो अगर कश्मीर में हो या बंगाल में हो। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को आप तो एक मिलिटेंट प्रोग्राम करते हैं क्या पूरा देश में? क्यों बोले तो तेलंगाना पे 1989 से नहीं है। अभी एक बार 2004 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हुआ इधर, तब से जब भी बोला नहीं, अब तो कोई मिलिटेंट प्रोग्राम करने का। हम तो सिर्फ स्मरण कराना चाहते हैं, ये स्टेट का जो लीडरशिप है, जो रूलिंग पार्टी में, सबको स्मरण करना चाहते हैं। आप लोग भी तो स्टूडेंट लीडर थे। अगर स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करेंगे तो देश को जो भविष्य का जो लीडर सिर्फ तैयार नहीं होता है, पॉलिसी मेकर तैयार होता है, डॉक्टर इंजीनियर तैयार होता है, हर क्षेत्र में इसका भागीदारी जरूरी होता है। हम लोग तो पहले जो एनईपी के खिलाफ आवाज और भी बुलंद करेंगे और मिलिटेंट करेंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है, कोरोना से पहले हम लोगों का मूवमेंट पूरा देश में, स्टूडेंट मूवमेंट एक जैसा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। लेकिन उसके बाद कोरोना आया, स्टूडेंट्स बाहर आ नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फिर से तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके फिर से। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, लेस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। एक हम लोगों का ये जो कॉन्फ्रेंस का कॉल है, एडुकेट ऑल, एम्प्लॉय ऑल, यूनाइट ऑल,
ये यूनाइट ऑल के जो मामला है, हम लोग के साथ मिलके ही ये प्रोटेस्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स उसके एक पार्ट है ये जो इलेक्शन करना, मिड डे मील नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, टीचर नहीं है, और ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेमोक्रेसी नहीं है। और स्टूडेंट को पहले रियलाइज करना पड़ेगा ये उसका डेमोक्रेसी, उसका बात करने का जो हक है उसको खत्म कर किया जा रहा है। ये रियलाइजेशन के बाद ही ये लड़ाई हो पाएगी। रियलाइजेशन तैयार हो रहा है अभी, हम लोग इसको लेकर मूवमेंट करेंगे। और ये जो एक एक स्टेप होता है मूवमेंट का, उस स्टेप के जरिए से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आश्वासन हम लोग देना चाहते हैं, लड़ाई होगा तो डेपुटेशन हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई होगा तो आमना सामनी लड़ाई होगा। ओके, క్వశ్చన్ లేకపోతే ప్రెస్ మీట్ అందరికీ ధన్యవాదాలు.